गाँव की बेड़िया कहती थी फसाना मौका, जब जरा चलने को सज्जाद उठाते थे पतंग। अज़ाख़ाने असरे नसीब की अलविदाई मजलिस की आज 8वीं मजलिस है। आज की मजलिस से इंग्लिस्तान से आए हुए मुमताज आलिम दीन खतीब आले इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद अली रज़ा रिज़वी साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। बात मजलिस अंजमने आप दिया काज़ियां नौखानी और ज़ीनत करेंगे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और मुसद्दर रहम करने वाला है। साहिबाने समाज की खिदमत में इकबाल हैदर नदीम का सलाम पहुंचे। पाक है वो ज़ात जो बेतलब अता करता है, जो बेहिसाब देता है, जिसकी अता को कोई रोक सकता नहीं, जिसके फैसले को कोई टोक सकता नहीं। ऐ रब्बे जुलजलाल तेरी इज्जत व जलाल की कसम, तू लायक इबादत है, हम करना तेरी बड़ी सादत है। मजलिस का आगाज हदीस किसा से हो रहा है। मैं गुजारिश करूंगा जनाब हाजी फरमान अली इब्राहिमी से कि वो हदीस किसा की तिलावत फरमाए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। बर हबीब खुदा खातमुल अंबिया बुलंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. صدق الله العلي العظيم. بلندر صلوات صلى على بسم الله الرحمن الرحيم. رفع عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنك قالت دخل علي يا رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدن ضعفا فقلت لك أعيذك بالله يا أبتاه من الزعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغديني فأتيتك بالكساء اليماني فغديتك به وستنظر إليك وإذا وجهك يتنالوك أنك في ليلة تمامك فكمال صلوات الله على فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليك السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنك رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداك يا رسول الله أتأذنني أنا أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام
نديك ويا صاحب حوزي قد أذيتنا فدخل معكم تحت الكساء صل على محمد ومحمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليك السلام قد أدبر قال السلام عليك يا أمك فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمر دفاتي فقال لي يا أمك إني الشم عندك رايحة طيبك كأنك رايحة جدي رسول الله فقلت لهم جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدات السلام عليك يا من اختاركم ضاك فتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا بلدي ويا شافي أمتي قد أذيتنا فدخل معكما تحت الكساء بلد صلوات صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك من حسن علي بن أبي طالب عليك السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني شم عندك رايحة طيبة كأنك رايحة أخيك وابن عمي رسول الله فقلت نعم أقوم لديك تحت الكساء فأقبل عليك نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال لك عليك السلام يا أخي ويا مسيك وخليفتي وصاحب الرضا قد أذيتنا فدخل علي تحت الكساء بلد صلوات ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بطاق يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال لك وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أضيت لك فدخلت تحت الكساء صلوات صل على محمد وآل
فلما اكتمل لازم تحت القصاي أخذ بيده رسول الله بطرف القصاي وبيدك اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنه يطلب بيتي وخاصتي وحرمتي لحمك لحمك ودمك دمي يا لمني ما يرك ويحزنني ما يحزنك أنا حرب لمن حرمك والسلم لمن صلمك وعدو لمن عادك ومحب لمن أحبكم إنكم مني وأنا منكم فاجعل سلاماتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزقانك علي وعليكم وأسكب عنكم الرئيس وتذكركم تذكيرا صل على صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت صبرا مبنيا فلا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمس مزيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة أخلاق خمسك الذين قاموا تحت القصار فقال نبي إبراهيم يا ربي وما تحت القصار فقال عز وجل قوم أهل بيت النبوة ومعدن والصادق وفاطمة وأبوها وبنها وبنوها صل على محمد وآل محمد فقال نبي جبرائيل يا ربك أتأذن يا نبي إلى الأرض لأكون معكم سادسا فقال الله تعالى أنت زنت لك بيبة الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله قد أنينا على يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلق سماء مبنية ولا أنزل مدحية ولا خمر منيرة ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أظهرني ندخل معكم وتأذنني يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين أحيي الله إنكم قد زدت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء سلام صل على فقال اليمين إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله
ليزيم عنكم الرسل الباري ويذكركم تذكيرا. صل على فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني عن جلوسنا تحت الكساء من الفن عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني من أخ نبيا واستفاني بالرسالة نبيا وذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا محبينا إلا ونزلت عليكم الرحمة وحبت بكم الملائكة واستغفر لكم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله قلنا وفاز الشيعتنا ورب الكعبة. فقال أمير رسول الله صلى الله عليه وآله صديا يا علي والذي ما سلم لك نبيا والسباني من رسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيك جمع من شيعتنا ومحبينا وفيك محموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا تعني حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا كذلك شيعتنا فوز وسعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم كل من كان حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعين حتى تسكنكم أرضك طوعا وتمتعكم فيها تبين بلند ترسل. रूह बस गई है अकीदत हुसैन की, सीनों में दिल है, दिल में है तिरबत हुसैन की। फर्शे अज़ा है मेरे लिए गम की जानमाज़, अश्कों से कर रहा हूँ इबादत हुसैन की। और अब सोज़ सना पर बसिया पेश करेंगे जनाब शुजा पासवी और उनके बरादरान पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले पसंद नहीं पसंद जो है खुदा को वही पसंद नहीं पसंद जो है खुदा को वही पसंद नहीं। अजीब लोग हैं जिक्रे अली पसंद नहीं। हम इस चराग की लौटे करते जाएंगे। हम इस चराग की लौटे करते जाएंगे। अली के जिक्र में हमको कमी पसंद नहीं। अली के जिक्र में हमको कमी पसंद
ना हुआ ना है ना होगा बखुदा यहाँ इश्क़ मुर्तज़ा के है चरा अज़ल से रोशन मेरी बज़्म में अंधेरा ना हुआ ना है ना होगा बखुदा ना हुआ। मिलकर दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सरदार मद है दर मैं जो पढ़ रहे हैं मेसा कहीं ऐसा फिर कसीदा ना हुआ ना होगा बखुदा ना हुआ बिका नफ्स मुर्तज़ा का तुम पुकार उठे सारे ऐसा सौदा ना हुआ ना है ना होगा बखुदा है बहिश्त से भी बढ़कर तेरी रोटियों की कीमत है बहिश्त से भी बढ़कर तेरी रोटियों की कीमत कोई इतना महंगा ना हुआ ना है ना होगा बखुदा नारे सलवात सभे रसूल समझे जुर्दा अली ने ओढ़े तो सभे रसूल समझे किसी और पर ये धोखा न हुआ ना हुआ तेरी आँखों में बसेरा तेरे दिल में बोझ है तेरी आँखों में बसेरा तेरे बोझ है कोई तेरे जैसा अंधा न हुआ न है न होगा बखुदा ये ज़मीन कर बला है
समय न कर बला है कोई अर्श इससे ऊंचा न हुआ न है न होगा बाखुदा सरे आस्र कर बला में जो हुसैन ने किया तहे तेग ऐसा सजदा न हुआ न है न होगा बाखुदा सैयद फायज मरहूम गफूर सोज़ सलाम नसीहत पेश करवा रहे थे। आबिद ने ऐसे तौक़े गरम बार काट दी, साए ने जैसे धूप की दीवार काट दी। एक बेअदब ने नाम जो ज़ैनब का ले लिया, ज़ैनब ने उसकी क़ुव्वत-ए इफ्तार काट दी। और अब जनाब काज़िम ज़ैदी जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि की बारगाह में पुरसा पेश करेंगे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबा से बुलंद नाराए अकबर
पूछेंगे जो सब लोग बाजू को हुआ क्या ये नील है कैसा किस किस को निशान दिखलाएगी ज़ैनब घबराएगी ज़ैनब फट जाएगा बस देखते ही घर को कलेजा याद आओगे भैया अरे दिल ढूंढेगा तुमको तो कहाँ पाएगी ज़ैनब घबराएगी ज़ैनब बेपर्दा हुई और कैद फाहर ने उठाई और मौत ना क्या जानिए क्या क्या दुख दुख अभी पाएगी ज़ैनब घबराएगी घबराएगी ज़ैनब। ये थे जनाब कासिम ज़ैदी साहब, जनाब ज़ैनब की बारगाह में शौदाए करबला का पुरसा दे रहे थे। मोमिन किराम, आज शब जुमा है। आज की शब हमारे मरहूम की अरवाह हमारे भेजे हुए ताइफ इंतजार एक सूर्य फातिह की दरख्वास्त से इन मजालिस और जुलूस के बानी सैयद मुसय्यब ज़ैदी साहब मरहूम और उनकी अहलिया जनाब सैयद शमस ज़ैदी की अहलिया सफिया खातून, सैयद मेहरबान अली ज़ैदी, सैयद अकबर अली ज़ैदी, सैयद अशरफ अली ज़ैदी, सैयद तैयब अली ज़ैदी, सैयद मोहम्मद मदन मरहूम, अल्लामा तारिक जौहरी मरहूम, अल्लामा डॉक्टर ज़मीर अहमद मरहूम, अल्लामा इरफान हैदर आबिद मरहूम, मौलाना आगा तैयब ज़ाहिरी, अल्लामा अब्बास शुमैली, अलहाज फायद नदवी और अशरफ बाज और अपने आइज़ा अक़रबा को भी इस फातिहा में शामिल कर लीजिए।
शाह कहते थे गुम हो गया जंगल में सितारा, ढूंढे कहां अकबर तुम्हें, ये बाप तुम्हारा। ये क्या किया तुम हिजर का गम दे गए बेटा, परदेश में तुम बनते ज़ईफ़ी का सहारा। मोमिनीन किराम, गुज़श्ता 2 साल से पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से ज़हनी अज़ियत का शिकार है और हर इंसान परेशान, मगर पाक परवरदिगार का एहसान है कि हम अपनी आज़ादारी, अपनी मजलिसें और जुलूस उसी शान शौकत, उसी अदब व एहतराम के साथ निकालते हैं, मनाते हैं, क्योंकि हमारा ईमान क्या है, हमारे महफिज हमारे इमाम हैं। जहाँ शय की आज़ादारी नहीं है वहाँ जन्नत की तैयारी नहीं है, जहाँ शय की आज़ादारी नहीं है वहाँ जन्नत की तैयारी नहीं है। हमारे पास तो खाके शिफा है, हमें कुछ खौफे बीमारी नहीं है। इन खूबसूरत बशार के खालिद हमारे मौजूद मेहमान, जिनका नाम शायर के हवाले से बड़ा मोतबर है, जर्मनी से आए हुए मारूफ अदीब, शायर, दानिश्वर, कॉलमनिस्ट, कबीले निजामत इंटरनेशनल पाकिस्तान जर्मनी की अदबी काउंसिल के सरबराह शायर अहले बैत जनाब सैयद इकबाल हैदर ऑफ जर्मनी अपना कलाम पेश करेंगे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अजीब लोग हैं जिक्र अली पसंद नहीं। बैठे बैठे 4 मिसरे हो गया, आपके सामने मैं पेश करता हूँ कि सब फजाइल जानते हैं हैदर कर्रार के, मिसरा याद रखिएगा जो पढ़ा गया कि अजीब लोग हैं जिक्र अली पसंद नहीं। सब फजाइल जानते हैं हैदर कर्रार के, फिर भी कुछ ऐसे हैं जो जिक्र अली से दूर हैं। सब फजाइल जानते हैं हैदर कर्रार के, फिर भी कुछ ऐसे हैं जो जिक्र अली से दूर हैं। नस्लगर ताहिर न हो आती नहीं हुब्बे अली, नस्लगर ताहिर न हो आती नहीं हुब्बे अली। क्या करे कुछ क्या करे बेचारे अपने खून से मजबूर हैं। नस्लगर ताहिर न हो आती नहीं हुब्बे अली। क्या करें बेचारे अपने खून से मजबूर हैं। और ये 4 में से देखिएगा कि मुनाफिक, दुरूद पढ़ते मिलके, मुनाफिक आज तक इस बात को कहते नहीं थकता, मुनाफिक आज तक इस बात को कहते नहीं थकता। अबू तालिब है काफिर और अबू सुफियान मोमिन है। मुनाफिक आज तक इस बात को कहते नहीं थकता, अबू तालिब है काफिर और अबू सुफियान मोमिन है। और ये बात ऐसे ही है जैसे कोई कज फिक्र ये कह दे है काफिर हजरत आदम मगर शैतान मोमिन है। ये बात ऐसे ही है जैसे कोई कज फिक्र ये कह दे है काफिर हजरत आदम मगर शैतान मोमिन है। इकबाल भाई का हुक्म, इनकी फरमाइश पे कलाम। बैत की ज़बां कटने को ये वार बहुत है, बैत की ज़बां कटने को ये वार बहुत है। एक हजरत शब्बीर का इनकार बहुत है, बैत की ज़बां कटने को ये वार बहुत है। एक हजरत शब्बीर का इनकार बहुत है। और तुम दुश्मने हैदर को न समझाओ अजीजों,
दूसरा मिसरा देखिएगा, आखिरी आदमी तक। तुम दुश्मने हैदर को न समझाओ अजीजों, क्यों तुम दुश्मने हैदर को न समझाओ अजीजों, अच्छा नहीं होने का ये बीमार बहुत है। तुम दुश्मने हैदर को न समझाओ अजीजों, अच्छा नहीं होने का ये बीमार बहुत है। और कहता है नबी से, हमें कुरान है काफी। कहता है नबी से, हमें कुरान है काफी, जैसे कि ये कुरान से खबरदार बहुत है। कहता है नबी से, हमें कुरान है काफी, जैसे कि ये कुरान से खबरदार बहुत है। और आपकी आंखों का जिक्र जिससे आप आंसू बहाते हैं मौला के गम में, रोना नहीं आता है तो सो जाती हैं आंखें, रोना नहीं आता है तो मर जाती हैं आंखें, जिस आंख में आंसू है वो बेदार बहुत है। रोना नहीं आता है तो सो जाती हैं आंखें, जिस आंख में आंसू है वो बेदार बहुत है। और चौथे इमाम की शान में चार दो से याद रखेगा इन बरसत के, नींद आंखों से बातिल की उड़ाने को अजीजों, नींद आंखों से बातिल की उड़ाने को अजीजों, सज्जाद की जंजीर की झनकार बहुत है। नींद आंखों से बातिल की उड़ाने को अजीजों, सज्जाद की जंजीर की झनकार बहुत है। और तलवारों की धारों पे ना इतराए जमाना, तलवारों की धारों पे ना इतराए जमाना, खूने रगे मजलूम की एक धार बहुत है, खूने रगे मजलूम की एक धार बहुत है। और अब्बास की तलवार का खींचा हुआ एक खत, अब्बास की तलवार का खींचा हुआ एक खत, तेरे लिए लश्करे कुफार बहुत है, तेरे लिए लश्करे कुफार बहुत है। और औकात तेरी कुछ नहीं ऐ शाम के हाकिम, औकात तेरी कुछ नहीं ऐ शाम के हाकिम, ज़ैनब के फकत खुतबे का इकबाल, औकात तेरी कुछ नहीं ऐ शाम के हाकिम, ज़ैनब के फकत खुतबे का इकबाल। दो शेर अकीदे के आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं, जिसके लिए मैंने शेर कहे, मैं लायके जन्नत जो नहीं हूं तो नहीं हूं। दूसरा मिसरा देखिए, मैं लायके जन्नत जो नहीं हूं तो नहीं हूं, मेरे लिए शब्बीर की सरकार बहुत है। मैं लायके जन्नत जो नहीं हूं तो नहीं हूं, मेरे लिए शब्बीर की सरकार बहुत। मत्ती की इबादत के, मौला मेरे जन्नत में मुझे ले गए इकबाल, मौला मेरे जन्नत में मुझे ले गए इकबाल, कहता रहा रिजवान ये गुनाहगार बहुत है। मौला मेरे जन्नत में मुझे ले गए इकबाल, कहता रहा रिजवान ये गुनाहगार बहुत है। एक मर्तबा कराची मुझे आना हुआ, रेहान भाई की दावत पे मैं आया जर्मनी से पढ़ने के लिए, महफिल थी और मिसरा था कि क्या होता अगर हैदर कर्रार ना होते। वो कलाम इत्तफाक से मेरे पास था, हसनैन से गर खुल्द के सरदार ना होते, हसनैन से गर खुल्द के सरदार ना होते, हम तो कभी जन्नत के तलबगार ना होते। हसनैन से गर खुल्द के सरदार ना होते,
हम तो कभी जन्नत के तलबगार ना होते, और होती न जमीन और न फलक और न जमाना, गर पंजतने पाक के अनवार न होते, और होता न जो मौला ये तेरे नाम का नारा, होता जो न मौला ये तेरे नाम का नारा, सोए हुए इंसान कभी बेदार ना होते। होता जो न मौला ये तेरे नाम का नारा, सोए हुए इंसान। एक बार भी तस्मीन देखिएगा क्या होता अगर है। बतला मुझे ए बदरो उहद खंदको खैबर, बतला मुझे ए बदरो उहद खंदको खैबर, क्या होता अगर है दरे कर्रार। बतला मुझे ए बदरो खंदको खैबर, क्या होता अगर हैदरे कर्रार न होते, और मरहब कभी मैदाने बराबर से न कटता, मरहब कभी मैदाने बराबर से न कटता, हैदर से अगर तेग के फनकार न होते। और इस मुश्किल था कि जिंदा रहे सरकार दो आलम, मुश्किल था कि जिंदा रहे सरकार दो आलम, नुसरत को अगर हैदरे कर्रार न होते, और इस्लाम को खा जाता यजीदों का ये टोला। आप इस्लाम को खा जाता यजीदों का ये टोला, दुनिया में अगर शह के आजादार न होते। इस्लाम को खा जाता यजीदों का ये टोला, दुनिया में अगर शह के आजादार न होते, और प्यासी न कभी रहती सकीना न ये बच्चे, प्यासी न कभी रहती सकीना न ये बच्चे, शाने जो कलम तेरे अलमदार न होते, और जान अपनी भी ये नुसरत शब्बीर में देते, जान अपनी भी ये नुसरत शब्बीर में देते, बीमार अगर आबिदे बीमार ना होते, बीमार अगर आबिदे बीमार ना होते, और मौजूद अगर होते कहीं अकबरो अब्बास, मौजूद अगर होते कहीं अकबरो अब्बास, शब्बीर के पेनेजों के कभी वार ना होते, और मक्का के हंगामाए मैशर में भटक जाता तू इकबाल, हंगामाए मैशर में भटक जाता तू इकबाल, हैदर जो तेरे काफिला सालार ना होते। हसनैन से गर खुल्द के सरदार ना होते, हम तो कभी जन्नत के तलबगार ना होते। मौलाना एक गाड़ी जो गलत तौर पर पार की गई है, AGR 114 कोरोला वाइट है। इनके मालिक से मेरी गुजारिश कि अपनी गाड़ी वहां से फौरी तौर पर हटा लें, नहीं तो ये पुलिस के जरिए लिफ्ट कर दिया है। बहुत शुक्रिया जनाब। इंशाल्लाह दिन के 11:30 पर मजलिस होगी। तमाम मुनीस से शिरकत की दरख्वास्त है। इस मजलिस से आली जनाब हजरत मौलाना सैयद अली रज़ी साहब खिताब फरमाएंगे। बाद खत्म मजलिस चुप जुलूस बरामद होगा, जो अपने मुकर्रर रास्तों में होता हुआ शाह नजफ माटर रोड पर इख्तिताम पजीर होगा। तमाम मातमी अंजुमन से मेरी गुजारिश को इंतजामी के साथ ताउन फरमाएं और कोशिश करें कि हम अपना जुलूस वक्त मुकर्रर तक वहां पहुंचा दें। बुज़दिल भी बहादुर का हशम मांग रहे थे, जाहिल भी मौल्लिम से कलम मांग रहे थे। मालूम नहीं था जिन्हें इमला भी अलम का, वो लोग भी खैबर में अलम मांग रहे थे।
मौला अली का कौल है कि जो शख्स इल्म दीन का आशिक होता है वो अपनी जान पर बड़ा एहसान करता है। इल्म का एक कतरा जहालत के समंदर से बेहतर है। नए रस्तों पे चलना चाहता हूं, हवा का रुख बदलना चाहता हूं। मैं रजा इल्म का समंदर हूं, खजानों को उगलना चाहता हूं। तहकीक के समंदर से इल्मो आगही के अनमोल मोती तलाश करने वाली शख्सियत, दुनिया खिताबत का बड़ा मोतबर नाम, खतीबे आलम इस्लाम, मुफक्किरे इस्लाम, मुमताज आलिम दीन, आली जनाब हजरत मौलाना सैयद अली रज़ा अल्वी साहब क़िबला कसरे मुसैयब की 8वीं मजलिस से खिताब फरमा रहे हैं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिही व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अली अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद। व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब। व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मसलु अहले बैती कमसले सफ़ीनति नूह मन रकिबहा नजा व मन तखल्लफ़ अन्हा ग़रिक़ा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत से लोगों ने इल्तिमास से दुआ की है। रुक़ैया बीबी बहुत सख्त अलील हैं, इनकी शिफायाबी के लिए और अपने अपने परेशानियों की अपनी तमाम परेशानियों की दूरी के लिए, अपनी दुआओं की सजावत के लिए, क्योंकि शब जुमा है, मरहुमीन की मग़फ़िरत के लिए, तमाम मरीज़ों की शिफाए कामिला के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। हमने हदीस सफ़ीना को उन्वान करार दिया इस खम्सा मजालिस के लिए। सिलसिले की चौथी मजलिस से कल आखिरी मजलिस रहेगी, वो दिन में है। नमाज के फ़ौरन बाद में पेश करूँगा मतालिब को। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमने अर्ज़ किया था कि ये हदीस मुतवातिर हदीस है और हमारे उलमा ने इसके लिए बहुत से तुरुक़ से इसको साबित किया है। तमाम मुसलमानों ने इस हदीस को दर्ज किया है और सब ने लिखा है मोतबर है। हदीस वही होती है, उसके इस्तिदलाल पे इख्तलाफ होता है कि मदलूल क्या है। अरबी में कहते हैं मदलूल, यानी किस बात पे दाल कर रही है, किस बात पे इंडिकेट कर रही है, दलील किस चीज पे है, साबित क्या कर रही है। बात पहुंच रही? इख्तलाफ इस पे हो सकता है कि ये साबित क्या कर रही है। जैसे ये इख्तलाफ नहीं है कि गदीर का वाक़या हुआ, मैं पहुंच जाइएगा। इस पे इख्तलाफ नहीं है कि गदीर का वाक़या हुआ, इस पे इख्तलाफ नहीं पैगंबर ने जनाबे अमीर को हाथों पे उठाया।
इस पे इख्तलाफ नहीं कि पैगंबर ने फरमाया मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला। बात पहुंच रही है ना? इन मौज़ूआत पे इख्तलाफ नहीं है कि सरवर कायनात ने जनाब अमीर को गदीर में ऐलान किया या नहीं किया, कहा कि मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला या नहीं फरमाया, इस पे इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ ये है कि ये जो लफ्ज़ मौला इस्तेमाल किया ये किस माना में इस्तेमाल किया। बात पहुंच रही है? तो हमारे तमाम मुसलमान भाई मानते हैं, हमारे उलमा, मैंने भी कलर्स किया था कि 502 तुरुक से 502 उलमा से मरहूम साहिब अबकात ने, लखनऊ के हमारे बहुत बड़ा नाम है साहिब अबकात उल अनवार मीर हामिद हुसैन मुसवी मरहूम अल्लामा आयतुल्लाह मीर सैयद हामिद हुसैन मुसवी ने 502 उलमा से किताबों से हवाले देके 124 सहाबा से हदीस गदीर को पेश किया। तो अब इख्तलाफ किस बात पे है? वो कहते हैं कि नहीं, मौला के 17 माना है, तो यहां पे जो माना पैगंबर ने नीयत की है वो दोस्त की नीयत की है, जिसका मैं दोस्त हूं उसका अली दोस्त हूं। तो इख्तलाफ ये है, मैं हदीस सफीना पे आता हूं, मैंने क्योंकि एतराज पेश किया है तो जल्दी से जवाब भी पेश कर दूं अगर सुनना पसंद फरमाएं। अब हमारे भाई ये कहते हैं कि पैगंबर ने नीयत ये की थी कि अली दोस्त हैं, जिसका मैं दोस्त हूं अली उसका दोस्त है। हम ये कहते हैं कि नहीं, मौला बेमाना औला बित तसर्रुफ, अरबी में कहते हैं औला बित तसर्रुफ यानी हाकिम, औलवियत रखने वाला के माना में। जिस तरह हम आम तौर से लफ्ज़ मौला इस्तेमाल करते हैं, तो हम जब मौला कहते हैं तो कहते हैं अल्लाह मौला है, रसूल मौला है और अली मौला है। बात पहुंच रही है? भाई चलिएगा इसी अंदाज से जैसे आप सुन रहे हैं। तो अब हम कहते हैं इन्नल्लाह, भाई वो कहते हैं रसूल खुदा की नीयत ये थी कि दोस्त के माना में। मैं कहता हूं नहीं, नीयत पैगंबर से पूछो, नहीं पहुंचा सका। कई लोग हमसे कहते हैं शियों का अकीदा ये है, तो अक्सर जब मुझसे कहते हैं ना भी आपका अकीदा ये है, तो मैं कहता हूं मुझे बताओ नहीं कि मेरा अकीदा क्या है, मुझसे पूछो। बात पहुंच रही है? ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। देखिए, अकीदा बताने की जरूरत नहीं होती, आपका अकीदा ये है। भाई मुझे आपका अकीदा पूछना होगा, मैं आपसे पूछूंगा। मुझसे मेरा अकीदा पूछिए कि मेरा अकीदा क्या है, ये ना बताइए पैगंबर या रसूलुल्लाह आपकी नीयत ये है, पैगंबर से पूछ लो। अभी भी नहीं पहुंचा सका। पैगंबर की नीयत पैगंबर से पूछना जरूरी है, तो पैगंबर ने अपनी नीयत ऐलान से पहले बताई है, अभी भी सारा मजमा नहीं है। हबीबे खुदा ने सहाबा से खुतबा दे के सवाल किया, अलस्तो औला बिकुम मिन अनफुसिकुम। कुरान ने ऐलान किया था, अल्लाह ने कहा अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों के नफ्सों पे उनसे ज्यादा इख्तियार रखते हैं। अगर बात पहुंच जाए, मौला यानी पूरा इख्तियार रखने वाला, नहीं पहुंचा सका। भाई मैं मिसाल के तौर पे यहां कोई किसी छत पे चढ़ जाऊं और अपने आप को गिराने की कोशिश करूं तो जायज नहीं, लेकिन अगर मुझसे नबी कह दें कूद जाओ, मैं खुद कूदूं तो खुदकुशी, उनके कहने पे कूद जाऊं और मर जाऊं तो शहीद। बात पहुंच गई? भाई कुरान है, कुरान करीम है, अन्नबियो औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, नबी तुम्हारे नफ्सों पे तुमसे ज्यादा औलवियत रखते हैं, तुमसे ज्यादा इख्तियार रखते हैं। कुरान ने कहा। पैगंबर ने सारे सहाबा से सवाल किया, 1,24,000 सहाबा का मजमा, सवाल किया अलस्तो
औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, ये जो अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया, मैं तुम्हारे नफ्सों पे तुमसे ज्यादा इख्तियार रखता हूं, तो क्या मैं तुमसे ज्यादा तुम्हारे नफ्सों पे इख्तियार नहीं रखता? तो सब मुसलमानों ने लिखा कालू बला, नाम नहीं कहा, हां नहीं कहा। सब सहाबा ने कहा बेशक। देखिए दो अल्फाज कहते हाँ, उर्दू में कहते हैं हाँ, नाम, हाँ, ऐसा ही है जैसा फरमा रहे। एक कहते नहीं बेशक, इसमें शक की बात ही नहीं है जो आप पूछ रहे हैं। सारे सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, शक की बात ही नहीं है कि आपका इख्तियार हमारे नफ्सों पे हमसे ज्यादा। नहीं, आगे नहीं बढ़ूंगा। मैंने एक मिसाल दी थी, फिक्री मिसाल दे देता हूं। एक बाप अपनी बेटी को इजाजत नहीं देता, शादी नहीं कर सकती। बच्ची तब तक शादी नहीं कर सकती कुंवारी हो जब तक कि बाप इजाजत ना दे। शरीयत मोहम्मदी यही है, जब तक बाप राजी ना हो कुंवारी बच्ची लड़की शादी नहीं कर सकती। लेकिन रसूल खुदा ने कहा अगर किसी का बाप इजाजत ना दे तो मेरे पास आओ, बाप से ज्यादा विलायत मेरे पास है। पहुंच रही है बात पहुंच रही है मेरे बच्चों तक, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई। एक मर्तबा किसी काम से कोई इजाजत नहीं देता, माँ बाप की इताअत वाजिब है। अच्छा, उस जमाने के अंदर बहुत से ऐसे थे कि नहीं, पैगंबर की बात नहीं मानते थे। अगर उन्होंने रोका हिजरत पे नहीं जा सकते, दौलत नहीं दे सकते, जिहाद पे नहीं जा सकते, तो पैगंबर के पास आते थे, माँ बाप की इताअत वाजिब है, वो रोक रहे हैं, आपका हुक्म क्या है? तो पैगंबर कई मर्तबा कहते थे अगर तेरी माँ ने रोक दिया नहीं जा सकता, कहा अच्छा माँ को बुला ला मैं समझा देता हूं, बाप को बुला मैं समझा देता हूं। तो पैगंबर कई मर्तबा देखते ये जुल्म कर रहे हैं, इख्तियार को नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, नाजायज इस्तेमाल नहीं कर रहे। पैगंबर खुद कहते हैं मैं इख्तियार को खत्म करता हूं, इख्तियार अपना इस्तेमाल करता हूं। अब बात पहुंच गई या नहीं? तो सबसे ज्यादा इख्तियार जिसे अल्लाह के बाद वो है रसूल खुदा। बस जितनी ताकत है उससे ज्यादा जोर लगा रहा हूं, बात पहुंच गई है। जिसका सबसे ज्यादा इख्तियार, नहीं आगे बढ़ूंगा, मुझे हर एक एक फर्द की जब तक पूरी तवज्जो ना हो और एक एक फर्द तक जब तक बात ना पहुंचे आगे नहीं बढ़ सकता। एक और बात पेश कर दूं, मैंने शायद एक मकाम पे पेश की थी, इशारा करके आगे। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, आपके फलां सहाबी से मैंने मकान खरीदा, मकान के पैसे भी दे दिए हैं, मकान मेरा हो भी चुका, लेकिन फिर भी बगैर इजाजत के घर के सहन में आ जाते। पैगंबर ने बुलाया, कहा ये शिकायत कर रहा है, तुम इसके घर में जाते हो बगैर इजाजत के? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। कहा क्यों? जब मकान बेच दिया फिर क्यों जाते हो? कहा या रसूल अल्लाह, जब मैं मकान बेच रहा था मैंने एक दरख्त की नीयत कर ली थी कि मैं इसे नहीं बेच रहा, तो अब दरख्त मेरा है, मकान इसका, अब मैं अपने दरख्त को पानी देने जाऊंगा तो घर से गुजरता हुआ जाऊंगा। पैगंबर इस्लाम ने कहा अच्छा ठीक है, वो दरख्त मुझे बेच दे, उसके बदले जन्नत में 10 दरख्त दे रहा हूं। पहुंच गया। जब पैगंबर फरमा रहे हैं ना जन्नत में 10 दरख्त दे रहा हूं, तो पैगंबर जन्नत की जमानत भी दे रहे हैं, जन्नत की जमानत भी दे रहे हैं, जाएगा तो जन्नत में मिलेंगे। क्या नहीं बेचता? क्या अच्छा 20 दरख्त के बदले में जन्नत में ये दरख्त बेच दे? क्या नहीं बेचता? यहां तक कहा 100 दरख्त जन्नत में दूंगा। भाई इतना बड़ा महल होगा कि 100 दरख्त होंगे, ये दरख्त बेच देगा? नहीं बेच सका, ठीक है अब मुझे तेरा दरख्त नहीं चाहिए। कुछ सहाबा को बुलाया, कहा वो दरख्त जो इसका उस घर में है ना, वो वहां से निकाल दो, जड़ से उखाड़ दो, इसको दे दो, जहां ले जाना ले जा। कहा सुन अभी ना जा, जब मैं तुझसे कह रहा था ना कि जन्नत में 100 दरख्त बेच रहा हूं तो फरिश्ते लगा रहे थे। जब मैं कह रहा था 100 दरख्त जन्नत में बेच रहा हूं तो फरिश्ते लगाते जा रहे थे, और जब मैंने कहा ना अब नहीं बेच रहा, उन्होंने उखाड़ने शुरू कर दिए।
बात पहुंच गई है कि जन्नत में तब तक कोई नहीं जा सकता जब तक कि इनकी दस्तखत ना हो। अब बात पहुंच गई है कितना इख्तियार है। मैं पेश कर रहा था इख्तियार कितना है रसूल खुदा का, जहां हमारा भी इख्तियार नहीं उनका इख्तियार है। कुल इख्तियार रसूल खुदा के पास है। कुल मुख्तार हैं जिनका नाम ही अहमद मुख्तार है, वो विलायत मुतलका के मालिक हैं। मजमे की तवज्जो हो, कुल की कुल विलायत के मालिक रसूल खुदा। भाई अल्लाह की विलायत है, जिसे चाहे दे, तो वो वली मुतलक है। उसने कहा मैंने मोहम्मद को बनाया। अब अल्लाह ने कहा बल्लिग या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता। मेरे हबीब पहुंचा दीजिए, ना पहुंचाया तो कोई कार्य रिसालत नहीं किया। पैगंबर ने गदीर का मिंबर लगवाया, आगे जाने वालों को वापस बुलाया, पीछे रह जाने वालों को गदीर में जमा किया। फिर सबसे सवाल किया क्या तुम्हारे नफ्सों पे तुमसे ज्यादा इख्तियार मैं नहीं रखता? सारे सहाबा और सहाबियात ने कहा बला, बेशक के आप इख्तियार रखते हैं। तो आपने कहा मानते हो मैं तुम्हारे नफ्सों पे तुमसे ज्यादा इख्तियार रखता हूं? जब सबने मान लिया तो कहा मन कुंतु मौला। तवज्जो फरमाई जाने की ना। अब बात पहुंच गई हम लोग। माशाअल्लाह। हैदरी तवज्जो फरमाई जाने की ना। तो हबीब खुदा ने पहले नीयत बताई है, पहले माना बताए, पहले बताया मौला किस माना में है। जब सबको बता दिया मौला इस माना में, तो फिर आपने कहा अब समझ गए ना मौला किस माना में है। जिसका मैं मौला, उसके अली मौला, उसके अली। और अगर फिर भी किसी को समझ में ना आया तो वो जो सबसे पहले सहाबी थे ना, जिन्होंने कहा था बख्न बख्न लका यब्ना अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे मुबारक हो, मुबारक हो। आज अस्बहता मौलाया व मौला कुल्ले मोमिन व मोमिना, आज आप मेरे और हर मोमिन मर्द और जन के मौला बन गए, मौला बन गए। तवज्जो, अगर दोस्त के माना में थे तो क्या वो पहले दुश्मन था? पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची। तो कहने वाला दुश्मन, तो कहने वाला हैदरी
तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम। तो सब समझ रहे हैं आज पूरी दुनिया गवाह है कि हबीब खुदा ने ऐलान किया और फिर उस ऐलान के बाद एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। जब सब ने कह दिया या अली आज आप हमारे मौला, और कहा या रसूल अल्लाह इजाजत है चले जाएं, कहा नहीं, जब तक सब अली की बैअत ना कर लें तब तक कोई नहीं जा सकता। अज़ीज़ाने गिरामी, बैअत दोस्तों की नहीं होती, मौला वो भी उस माना में जिसमें हम लेते, जिसमें अल्लाह ने बयान किया, जिसमें रसूलुल्लाह ने बयान किया, उस माना में जब मौला हो तो उस मौला की बैअत होती है, दोस्त की बैअत नहीं होती। फैज़ान गिरामी, हबीब खुदा ने फरमाया कि सबसे पहले अली की बैअत होगी और जब तक सब बैअत ना कर लें तब तक कोई नहीं जा सकता। तो यहां तक लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह मजमा बहुत ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा का मजमा, 1.25 लाख का मजमा, ये आंख हद निगाह मजमा, ये तो कई दिन गुजर जाएंगे। पैगंबर ने कहा मुझे परवाह नहीं, जब तक सब बैअत ना कर ले तब तक कोई नहीं जा सकता। या रसूल अल्लाह, अगर आप रोकेंगे इतने दिनों के लिए तो सबका खिलाना पिलाना आपके जिम्मे होगा। का परवाह नहीं, अली के नाम पे तो हबीब खुदा ने कहा चलते रहेंगे ना जरा भाई। आखिरी शब्द लगा लीजिए अय्याम अज़ा की, और कल 8 रबीउल अव्वल है, अय्याम अज़ा के 2.25 माह के हमारे आखिरी दिन मैं पेश कर रहा हूँ मतालिब को, चलते रहिएगा। तो जाने गिरामी, हबीब खुदा ने कहा जब तक एक मोमिन और मोमिना बैअत ना कर ले तब तक कोई नहीं जा सकता। या रसूल अल्लाह इतने लोगों को खाना खिलाना, कहा हाँ। अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलिसी ने लिखा सबसे बड़ा अकीकत कायनात में मौलाए कायनात का हुआ, इतने जानवर किसी के नाम पे ज़िबा नहीं हुए जितने हजरत अबू तालिब ने जनाब अमीर की विलादत पे मक्के में जानवर ज़िबा किए हैं। ऐलान गिरामी, तमाम के तमाम ऊंटों में से, गाय बकरों में से, भेड़ों में से, सैकड़ों के हिसाब से एक एक जानवर में से ज़िबा की। और सरवर कायनात कहते चाचा जितना देंगे अली के नाम पे, कहा कि जितना अफराद जितना खाएं। कहा या रसूलल्लाह कैसे खिलाएंगे? क्या मेरी ऊंटनी को नहर कर दो, एक ऊंटनी है, इतना बड़ा मजमा। का तुम्हें नहीं याद मेरे चचा ने दावत जुलशीरा में एक भेड़ की रान से पूरे कबीले को शेर कर दिया था? ये मेरी ऊंटनी है, इसमें बरकत होगी, अली के नाम पे जितना खिलाओ। कहा या रसूलल्लाह पानी नहीं है। कुछ लोगों से कहा कुआं खोदो, इसी में मसरूफ रहें ताकि साजिशों से बात आ जाए। कुआं खोद, अपने अंदाज से पेश कर रहा हूं, ये रिवायत में अल्फाज नहीं काट दीजिएगा बाद में। तो कहा कुआं खोदो, कहा या रसूलल्लाह पानी खारा, मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूं। पैगंबर ने कहा होगा कुएं को मेरे पास लाओ। मुअर्रिखीन ने यह लिखा पैगंबर ने अपना लुआब दहन कुएं में डाला, सहाबा से कहा अब पी के देखो, उन्होंने पिया, कहा अब मीठा हो गया। जिसके लुआब दहन का असर ऐसा हो, सोचिए उसके खून का असर। बस भाई, कहा कि बैअत जब तक सब अली की बैअत ना कर लें। या रसूल अल्लाह पहले बैअत कौन करेगा? तो आपने फरमाया बैअत मेरे घर से शुरू होगी। आपकी जबान में पेश करूं, आपके अंदाज से, लेडीज फर्स्ट। बैअत मेरे घर से शुरू होगी, अज़वाज रसूल सबसे पहले बैअत करेंगे। खैमा नस्ब किया गया, खवातीन सब के सब खैमे में चली जाएं। या अली आप यहां तशरीफ फरमा हो जाइए। तो मुअर्रिखीन ने 2 तरीके लिखे हैं, दोनों शिया सुन्नी उलमा ने। कुछ कहते हैं कि जनाब अमीर अबा पे हाथ रख के बैठे, खवातीन आती हाथ रखती, कसम खा के कहती हूं बगावत नहीं करोगे।
साजिश में हिस्सा नहीं लोगे, जंग में नहीं आओगे। भाई चलिएगा अज़ीज़ान किराम, इसी मोहब्बत के साथ एक मर्तबा 3 शराइत है। आने वाला कहता मैं कभी भी साजिश में हिस्सा नहीं लूंगा, बगावत नहीं करूंगा, जंग नहीं करूंगा, इताअत करूंगा। और बैत लेने वाला दूसरा तरीका लिखा है कि एक ज़र्फ़ आब रखा, पानी का ज़र्फ़ रखा, मौला ने यहां उंगलियां रखी, जो जो आता वहां पे खवातीन में से बैठने के बाद कहता या अली, मौला का नाम लेके कहता हम आपकी इताअत में बाकी रहेंगे, साजिश में हिस्सा नहीं लेंगे। वहां पे उंगलियां रखते, यहां मौला बैठते, एक एक करके सब बैत लेने के लिए खवातीन आती रही। बैत लेने वाला कहता अगर बैत पे बाकी रहे तो मैं हिदायत दूंगा, मदद करूंगा और शफाअत करूंगा। लेकिन अगर किसी ने बगावत की तो याद रखो शफाअत मेरे पास है। बात पहुंच गई है। वक्त नहीं तफसील में जा सकूंगा। ऐज़ान गिरामी और यहां जो आगे बैठे ना इनको पकड़ लीजिए कि कह रहे हैं बहुत वक्त है अभी। चलिएगा मेरे साथ ऐज़ान में, फौरन बाद मजलिस है, तफसील मुझे कुछ और वहां पे भी मतालिब पेश करना। तो अज़ीज़ान गिरामी, जनाब सरवर कायनात ने सबसे बैअत ली। जब खवातीन की बैत तमाम हुई तो रसूल खुदा ने आवाज़ दी सलमान, अबू ज़र, मिक़दाद, अम्मार। अब समझ में आए पैगंबर के 4 यार। आपने फरमाया कि अली के लिए बैअत का एहतमाम करो, तो जनाब सलमान ने कहा यहां पे खैमा नस्ब कर दो, इतने मर्द हैं। जनाब अमीर को सबसे बैअत लेनी है तो 3 दिन तक बैअत जारी रही, सब लोग बैअत करने के लिए। तो वहां पे खैमा नस्ब किया गया, जनाब अमीर उस खैमे के साए में, और ये चारों हस्तियां जनाब अमीर की खिदमत में। सिर्फ और सिर्फ नमाजों का वक्फा होता था, जनाब अमीर बैअत ले रहे थे। एक जुमला कह के आगे बढ़ जाऊंगा, मैं पूरा मजमून पढ़ना नहीं चाह रहा था, जहन में कुछ और था, लेकिन आप हजरात ने। तो एक मर्तबा जनाब अमीर बैअत ले रहे हैं, तवज्जो मेरे साथ। एक ने दूसरे से कहा कि तुमने गौर किया अली की हथेली आसमान की तरफ नहीं है, जमीन की तरफ है। क्या मैंने भी गौर नहीं किया? चलो रसूल खुदा को तो शायद शिकायत की जो भी का या रसूलल्लाह हमने अपनी आंखों से देखा अली की हथेली जमीन की तरफ है, आसमान की तरफ नहीं। का जब मैंने ऐलान कर दिया अली मौला है तो मुझसे शिकायत ना करना, अली से सवाल करो। आए का या अली, मुख्तसर कर रहा हूं, या अली आपकी हथेली जब बैअत ले रहे हैं तो आसमान की तरफ नहीं है, जमीन की तरफ है। क्यों? क्या क्योंकि मैं बैअत मांग नहीं रहा, मैं बैअत ले रहा हूं। बैअत मांगने वाले और बैअत लेने वाले। बैअत मांगने वाले और बैअत लेने वाले और। क्या कोई दलील है आपके पास? अब हर बात पे जनाब अमीर से आयत है, कोई दलील है? कहा हाँ, तवज्जो बस। ऐज़ान गिरामी, एक मर्तबा जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ, रसूल खुदा ने भी क्या फरमाया था, लहमुहु लहमी, इसका गोश्त मेरा गोश्त, वदमुहु दमी, इसका खून मेरा खून, इसका हाथ मेरा हाथ। तवज्जो, तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया जब पैगंबर इस्लाम बैत ले रहे थे, इन्नल्लज़ीना युबायऊनका युबायऊन अल्लाह, ऐ मेरे हबीब वो जो आपकी बैत करते हैं, आपकी बैत नहीं करते, अल्लाह की बैत करते हैं। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ हर हाथ के ऊपर है, नीचे नहीं। तो मानो ना कोई यदुल्लाह है,
और मैं बैअत मांग नहीं रहा हूं, मैं बैअत ले रहा हूं। अजान गिरामी, रसूल खुदा भी ऐसे ही बैअत लिया करते, जनाब अमीर भी। आज बैअतें बदल चुके हैं। इमाम की बैअत इमाम की बैअत है। हदीस सफीना भी इस्मत भी साबित करती है, जो मैंने कल पेश की थी, और विलायत भी साबित करती है, और खलीफा बिला फसल होना भी साबित करती है। तो अहले बैत अलैहिस्सलाम को वो मकाम हासिल है, वो औलवियत हासिल है जो किसी और को हासिल नहीं है। जब हलाल और हराम बयान करें तो आले मोहम्मद और उनका हलाल और हराम तमाम के हलाल और हराम से अगर टकरा जाए तो सबकी बात को रहने दो, आले मोहम्मद की बात को ले लो। नहीं पहुंचा सका, ये नमाज का तरीका बताएं तो इनका तरीका सही होगा, क्योंकि ये नजात की कश्ती है। औरों तवज्जो हो, ये नमाज का तरीका बताएं। अब अगर आले मोहम्मद कहें हाथ खुले रखो तो खुले रखो, अगर वो कह दें कि हाथ बांध लो, खुदा की कसम अगर आले मोहम्मद कह देते कि हाथ बांध लो तो हम बांध लेते। उन्होंने मना कर दिया, बांधना मत। मैं तमस्खुर नहीं कर रहा, खुदा की कसम, जो बांधते हैं वो अपना अपना खुद जवाब देंगे, जो हाथ बांधेगा वो अपना खुद जवाब देगा। मैं किसी का तमस्खुर करने का हक नहीं रखता, लेकिन याद रखिएगा, बताना अल्लाह को इस तरह से है। तेरे हबीब ने कहा था आले मोहम्मद है नजात की कश्ती, हमने उनका सुन के नहीं बांधे। हाँ, तो फिर कोई ऐसा तो हो ना कि अल्लाह उसे कबूल करता। ऐसा नहीं गिरामी, वुजू का तरीका आले मोहम्मद से, रोजे का तरीका आले मोहम्मद से। घबरा के ना सुनिएगा, हमें अगर आले मोहम्मद कह देते वुजू ऐसे करो। मैं एक एयरपोर्ट पे वुजू कर रहा था, अमामे अबाकबा में सफर नहीं करता, हर जगह पे इंटरव्यू शुरू हो गए थे, हर जगह आइए जरा रैंडम चेक, रैंडम यानी इत्तेफाकी तौर पे। मैंने कहा मुझे भी पूरा यकीन है इत्तेफाकी ही है। तो उसके बाद मैंने अमामे अबाकबा में सफर करना रहती, अब ये 10-15 साल हो गए, ये 11 सितंबर के बाद। मैं पहले अमेरिका ज्यादा जाता था, तो अब फिर भी अमामा अबाकबा ना भी हो, चेहरा बता देता अली रज़ा रिज़वी। तो बहरहाल इंटरव्यू ये वो होता रहता मेरे साथ। तो मैं किसी एक एयरपोर्ट पे वुजू कर रहा था, मैंने कहा नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़, नमाज खाना था। एक साहब कहने लगे भाई जब आप पानी मौजूद है, पाँव धोने की जगह है, तो जब पानी ना हो तो पाँव का मसा कीजिए ना, आप पाँव बेवजह नहीं धो रहे, पाँव धो लीजिए। मैंने कहा नहीं, पाँव धोना जो है वो हमारे नजदीक दुरुस्त नहीं है, बल्कि हमारे नजदीक बिदअत है। कहने लगे नहीं कि पाँव धोना जो है वो वाजिब है। मैंने कहा अच्छा, आपने सही बुखारी है सही मुस्लिम पढ़ी है? कहने लगे देखी है, पूरी नहीं। मैंने कहा सही मुस्लिम में लिखा पैगंबर 3 छटांग में वुजू कर लेते, जरा अपना वुजू 3 छटांग में करके दिखाइए। मैं अपना वुजू करके दिखा दूंगा। ये इतने से पानी में ना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वुजू। अज़ीज़ान गिरामी, हम सबका इस्तकबाल करते हैं, लेकिन रसूल खुदा की शरीयत आखिरी शरीयत। फिर किसी को हक हासिल नहीं है कि रसूल खुदा के हराम को हलाल कर दे या उनके हलाल को हराम करार दे, उनकी सुन्नत को बदल दे, उनके हुक्म को बदल दे। हमारे इमाम 12 इमाम, हमारा अकीदा यह है मासूम है, हमारा अकीदा यह है मासूम है, मनसूस मिन अल्लाह। पैगंबर ने नहीं बनाया, अल्लाह ने बनाया, पैगंबर ने बताया। हमारा अकीदा यह अल्लाह ने बनाया, लेकिन हमारा अकीदा यह है हमारे 12 मासूम इमामों को भी हक नहीं है कि पैगंबर के हराम को हलाल कर दें। जब मासूम को हक नहीं, तो गैर मासूम को कैसे हक हो सकता? फिर किसी को हक नहीं कि रसूल खुदा कहें हराम और कोई और कह दे के हलाल। नहीं, बात पहुंच गई। रसूल खुदा कहें वुजू इस तरह, फिर अब किसी को हक नहीं कि कहे कि वुजू किसी और तरीके से। अज़ीज़ान गिरामी, जो कुछ रसूल खुदा कहें हरफ आखिर, किसने हमें बताया? हमारे इमाम ने।
हराम मुहम्मदन हरामुन इला यौमिल क़ियामा व हलालुहु हलालुन इला यौमिल क़ियामा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हराम क़यामत तक के लिए हराम, उनका हलाल क़यामत तक के लिए हलाल। किसी को हक नहीं कि पैगंबर की शरीयत को बदलें। जब शरीयत रसूल खुदा के जमाने में आयत आ गई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने दीन को मुकम्मल कर दिया, तो फिर बाद में किसी को हक नहीं है कि शरीयत मोहम्मदी के अंदर रद्दो बदल करे, दखल अंदाजी किसी को इख्तियार। मेरी बात वाज़ेह है मेरे बच्चों पे, मेरे भाई मेरे बच्चे इस बात को अपने जहन नशीन कर लें कि फिर कभी भी कोई दुनिया के अंदर इख्तियार नहीं रखता। मैं एक हदीस और पेश करना चाह रहा हूं, मुकम्मल करूंगी। 5 से 10 मिनट और लूंगा। गिरामी, ये हदीस है रसूल खुदा की, मसलो अहले बैत का मसल सफीनत नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मानंद। लेकिन एक और हदीस बनु उमैया की तरफ से बाज अफराद को पैसे दे करके बनवाई गई, घड़ी गई, और उस हदीस के अंदर अल्फाज ये हैं कि अस्हाबी कन नुजूम बेअय्यह में क़दैतु महतदैतु, मेरे सहाबा की मिसाल सितारों की, जिसकी भी इक़्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। तो अब ये पूरी की पूरी हदीस इसलिए बनाई गई कि भाई अहले बैत तो कश्ती हैं, कश्ती को समंदर में हिदायत चाहिए होती है तो सितारों से मिलती है। बात पहुंच रही मुझे, क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम के दिफा को पेश करना। तो अब यहाँ पे ये कोशिश की गई है कि अहले बैत भी सहाबा को देख के हिदायत लेते हैं, सियासत में उनके पीछे चलना है, हलाल और हराम में अहले बैत के पीछे। बात पहुंच गई है। अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर इस्लाम ऐसी कोई बात पेश कर ही नहीं सकते जो कुरान के खिलाफ है। बहुत घबरा के सुन रहे हैं। हबीब खुदा पे कुरान नाजिल हुआ, आप कुरान के खिलाफ कोई हदीस नहीं पेश कर सकते। अगर कहा जाए सारे सहाबा सितारों जैसे हैं, किसी भी सितारे के पीछे चलो, मुझे जाना है शुमाल, तो मैं कुतुब शुमाली को देखूंगा, उस सितारे के पीछे जाऊंगा जो शुमाल ले जाए। अगर किसी भी सितारे के पीछे गया तो गुमराह हो जाऊंगा। फिर भी नहीं है मजमा। कुरान करीम कहता है तिलकर रसूलो फज़्ज़लना बअदहुम अला बअद, वो जो हमने रसूल भेजे हैं बाज को बाज पे फजीलत दी है, सब बराबर। तिलकर रसूलो फज़्ज़लना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, उनमें से कुछ ऐसे जिन्होंने अल्लाह से कलाम किया। वो कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, मूसा ने अल्लाह से बगैर वास्ते के कलाम किया। तवज्जो, अल्लाह कह रहा मैंने इतने नबी भेजे, इतने रसूल भेजे, सब के सब मासूम, लेकिन सब बराबर नहीं। जब अंबिया मुरसलीन मासूम होते हुए बराबर नहीं, तो जो सहाबा मासूम ही नहीं है, सब बराबर कैसे हो सकते हैं? ऐज़ान गिरामी, इसीलिए हम सब पे एहतराम वाजिब है सबका, लेकिन सबसे पहले अहले बैत पैगंबर इस्लाम के बाद सबसे पहले अहले बैत अलैहिस्सलाम। कहीं पे भी अगर अहले बैत से कोई टकरा जाए तो फिर अहले बैत को औलवियत है, मुखालिफिन की बात को नहीं लिया जाएगा। सहाबा में आपस में जंगें भी हुई हैं, कत्ल भी हुए हैं, लान तान भी हुई है। कभी भी दो लड़ने वाले दोनों हक पे नहीं हो सकते, दोनों गलत तो हो सकते लेकिन दोनों हक पे नहीं हो सकते। ऐज़ान गिरामी, हदीस सफीना ये बता रही है कि अहले बैत नजात की कश्ती है, उनके बगैर कोई भी नजात नहीं पा सकता। अज़ीज़ान गिरामी, खुलासा पेश कर रहा हूँ। रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद
बैत अलैहिस्सलाम के ऊपर जुल्म हुआ तो पांचवें इमाम ने फरमाया, हबीब खुदा ने अपनी आल की मोहब्बत का तकाजा किया, मोहब्बत का तकाजा किया था। अगर कहा होता ना मेरी आल पे मेरे बाद जुल्म करना, तो लोग इतना जुल्म नहीं कर सकते थे जितना मवद्दत के तकाजे के बाद किया। हमारे लिए जानते हैं ज्यादा बड़ा सदमा क्या है? ये हम क्यों रोते हैं हर साल? अगर मुशरिकीन और कुफ्फार ने मारा होता तब भी हम बहुत आले मोहम्मद के मजलूमियत का प्रचार करते, बहुत रोते। लेकिन ज्यादा सदमा इस बात का है कि मारने वाले आले मोहम्मद के सब कलमा गो थे, कलमा पढ़ते थे और इन पे खंजर चलाते थे, अल्लाह रसूल का नाम लेते थे और आले रसूल के गले काटते थे, रसूल खुदा का नाम लेके आले रसूल को जहर देते थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा है, हम इस बात को भुला नहीं पाते। इसलिए आज जब सारे मुसलमान मुत्तहिद हैं कि इमाम हुसैन के कातिलों पे लानत है, तो फिर इमाम हसन के कातिलों पे क्यों लानत नहीं है? क्यों इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के, जनाब ज़ैनब कुबरा के ऊपर जफा कर ताज़ियाने चलाने वाले, जनाब अमीर पे खंजर चलाने वाले, तलवार चलाने वाले क्यों मलऊन नहीं? अज़ान गिरामी, यह आखिरी शब है। आज जो पूरे मुहर्रम नहीं रो सका वो जरूर रोए। हम हक अदा नहीं कर सके पुरसा देने का। मैं जानता हूं यहां अंदर बैठने की भी जगह नहीं है। मुझे बताया गलियां, चौराहे, बाजार सब बहुत मजमा है। यह आखिरी अय्याम है। आए जरा मिल के कहें, मौला हम हक अदा नहीं कर सके। जनाब सैयदा से कहें, बीबी हम जी भर के रो नहीं सके, हम जी भर के मातम नहीं कर सके। जैसा हक था हम वैसा आपको पुरसा नहीं दे सके। लेकिन बीबी जैसे भी हमारे टूटे फूटे अल्फाज थे उन्हें कबूल कर लीजिएगा। हमारा एक आंसू भी कबूल हो जाए, हमारा एक हाथ भी सीने पे पड़ने वाला कबूल हो जाए। आए जरा मिल के चलिएगा। आज मदीने वापसी के चंद जुमले पेश करना चाहता हूँ। मैंने जहाँ मसाइब को रोका था, बीबियाँ जब चहलुम पे करबला पहुंची ना, तो बीबियाँ बड़ी तड़प रही थी। कोई आज रोने में बुखल ना करे। आज किस किस का पुरसा देना है? ये बीबियाँ वापस जा रही हैं। वहाँ कौन कौन सी बीबियाँ हैं? कोई हजरत उम्मुल बनीन है, एक और बीबी है नाम फातिमा सुगरा है। ये बीबियां करबला से चली मदीने पहुंची। जब मदीने आई ना तो मौला सज्जाद ने आवाज दी, बशीर हम फौरन मदीने नहीं जाएंगे। मुझे बताया गया मरहूम मुसैयब ज़ैदी साहब ने ये इसीलिए रखा था यह आखिरी अशरा कि बीबियों की हम करबला से वापसी के दिन ये मजलिस का अहतमाम हो, अम्मारियाँ आएँ। कल आप लोग सब कुछ बरामद करेंगे, मैं दिल में तफसील से पेश करूँगा, लेकिन आज सुन लीजिए। कल मैं शहादत भी पढ़ूँगा। जब काफिला पहुँचा मदीने तो मौला सज्जाद ने आवाज़ दी, बशीर इस हालत में अगर हम लोग मदीने में दाखिल हो गए ना, हमें इस हालत में देख के कोई ना कोई मर जाएगा। जब ये पता चले कि ये है काफिला, कितने अफराद के साथ गए थे, बस इतने से लोग वापस आए, बाकी सब कहाँ रह गए? कहाँ हैं हुसैन, कहाँ हैं अब्बास, कहाँ अली अकबर, अली असगर, कासिम, अब्दुल्ला, ओनो मोहम्मद, इमाम हुसैन के बेटे, इमाम हसन के बेटे, मौला अली के बेटे, सब कहाँ हैं? 40 से ज्यादा बच्चे गए थे बीबियों के साथ। जब वापस आए ना तो 10 भी बच्चे गोदों में नहीं थे, 10 भी बच्चे नहीं थे। बच्चे क्या हुए?
माओं के तो हाथ बंधे हुए थे, बच्चों ने माओं के गले में बाहें डाले हुए। जब बच्चों के हाथ थक जाते तो हाथ छूट जाता, पुश्ते नाका से बच्चे जमीन पे गिरते और गिर के शहीद हो जाते। न जाने किसी पिछली ऊंटनी के कदमों में आ जाते, न जाने किस किस माँ की गोद उजड़ी। एक एक बच्चा उस रास्ते में मारा गया। आए भाई चलें। मौला सज्जाद ने आवाज दी, बशीर जाओ जाके मदीने में ऐलान कर दो। वक्त नहीं है, 5 मिनट यहाँ पे, इंशाल्लाह बाकी तफसील वहां। बशीर जाओ जाके ऐलान कर दो कि इमाम हुसैन मारे गए, मेरे बाबा मारे गए। मौला के आंसू बह रहे हैं, सर पे स्या अम्मामा है, हाथ में मौला अब्बास का आलम। कब बशीर जाओ जाके मस्जिद नबवी में ऐलान कर दो। एक मर्तबा मिंबर रसूल पे खड़े हुए बशीर, अगर देख सके तो सब मेरी तरफ देखिएगा। बशीर ने ऐलान किया, अला या अहला यस्रिब ला मुकाम लकुम बिहा क़ुतिल अल हुसैन व करबला। ये नहीं कहा मदीने वालों का, यस्रब वालों हुसैन मारे गए, अब ये शहर जीने लायक नहीं रहा। मस्जिद के साथ वाला घर जनाब उम्मुल बनीन का घर था, मौला अली का घर था, जहां जनाब उम्मुल बनीन। बीबी ने फौरन सर पे बुरका रखा, हाथ में असा लिया, आवाज फजल अपने पोते को बुलाया, मुझे फौरन मस्जिद नबवी ले चल। बशीर को नहीं मालूम बीबी कौन है, बीबी के सर पे बुरका था, बीबी की आंखों में मोतिया उतर आया था, देख नहीं पाती थी। आवाज दे के पूछा, बशीर ये कौन से हुसैन मारे गए? बशीर को पता नहीं है बीबी कौन है। एक मर्तबा का, बीबी आपको नहीं मालूम, नवासा रसूल हुसैन, अली का लाल हुसैन, जहरा के दिल का चैन हुसैन। बीबी के हाथ में असा था, हंसा हाथ से गिर गया, बस असे का गिरना था। बीबी के आंसू बहने लगे। कब बशीर मैं कैसे मान लूं अब्बास के होते हुए हुसैन मारे गए? बीबी ने एक मर्तबा जब सवाल करने लगी तो बशीर ने कहा नहीं बीबी आपने गलत सुना, पहले अब्बास मारे गए थे, बाद में हुसैन मारे गए। कब बशीर मैं कैसे मान लूं अली का शेर बेटा अब्बास जंग न कर सका? तो बशीर ने कहा, बीबी जब अब्बास के सर में गुर्ज लगा, अब्बास घोड़े की जीन पे संभल नहीं सके, अब्बास घोड़े से गिर गए। अब एक मर्तबा बीबी उम्मुल बनीन ने अपना तारुफ करवाया, कहा बशीर तू अब्बास को जानता नहीं होगा, बशीर मैं अब्बास की मां हूं, बशीर मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरा शेर बेटा अब्बास 2 उंगलियों से गुर्ज को जमीन पे फेंका करता था। बशीर मैं कैसे मान लूं अब्बास जंग ना कर सका, गुर्ज को ना रोक सका? बशीर ने बड़े अदब से कहा, बीबी जब अब्बास के सर में गुर्ज लगा, अब्बास के बाजू नहीं थे, जनाब उम्मुल बनीन जमीन पे गिर गई, मातम करने लगी, हाय अब्बास, हाय अब्बास। बशीर ने एक मर्तबा कहा, बीबी कौन से मसाइब ने आपका दिल तोड़ दिया? क्या बशीर तूने मेरा कलेजा छलनी कर दिया। बशीर जब कोई शहसवार गिरता है ना, बशीर वो हाथों का सहारा लेता। बशीर मेरे बेटे अब्बास के बाजू नहीं थे, मैं ये सोच के रो रही हूं जब अब्बास गिरा तो उसका चेहरा पहले लगा या सीना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई 2 से 3 मिनट की जहमत दूंगा, कल मुकम्मल करूंगा, आज नहीं मुकम्मल कर सकता। एक मर्तबा जनाब उम्मुल बनीन ने कहा, फजल मुझे कुछ देर के लिए जन्नतुल बकी ले चल। बीबी जन्नतुल बकी आई, एक कब्र की पायंती में बैठी। कहा, बीबी मेरे अब्बास को माफ कर दीजिएगा, मेरे अब्बास ने बेवफाई नहीं की थी। बीबी पहले मेरा अब्बास मारा गया था, बाद में आपका हुसैन मारा गया। बीबी माफी इसलिए मांगने आई हूं, आपकी बेटियों का पर्दा नहीं बचा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह।
अजरकुम अल्लाह। बीबी के 4 बेटे थे, चारों करबला में मारे गए। हजरत अब्बास, हजरत अब्दुल्ला, हजरत जाफर, हजरत इमरान, चारों करबला में मारे गए। बीबी ने चारों के नाम से एक कब्र बनाई जन्नतुल बकी में। कहा ये मेरे अब्बास की कब्र है, ये जाफर की, ये अब्दुल्ला की, ये इमरान। फिर कहा मेरे शेरों, मैं तुम पे गिरिया नहीं करूंगी क्योंकि तुम्हारी मां जिंदा है। फिर मौला के नाम से बीबी ने एक और कब्र बनाई। कहा ये मेरे मौला हुसैन की कब्र है। कहा मौला मैं सिर्फ आप पे गिरिया करूंगी क्योंकि आपकी मां नहीं है। बीबी ने एक मर्तबा रो के कहा मदीने वालों, मुझे कोई मेरे बेटों का पुरसा ना दो, मुझे सिर्फ मेरे मौला हुसैन का पुरसा देना, मेरे सारे बेटे हुसैन पे कुर्बान। उठी जनाबे उम्मुल बनी का फजल, मुझे रोजा रसूल पे ले चल। आज सारे नहीं पढ़ सकता, मुकम्मल नहीं कर सकता, वक्त नहीं है भाई, रोने में बुखल न कीजिएगा। बीबी आई, कहां पे आई? रोजा रसूल पे। कम अपने पोते से कहा मुझे जनाबे ज़ैनब से मिलवा दे। कहा अम्मा सामने जनाबे ज़ैनब है। बीबी आगे बड़ी, गले लगाया। कहा बीबी आपको मौला हुसैन का पुरसा कबूल कीजिए। जनाबे ज़ैनब ने कहा अम्मा अब्बास का पुरसा कबूल कीजिए। कहा नहीं, मुझे अब्बास का पुरसा ना दीजिए, मुझे सिर्फ मेरे मौला हुसैन का। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई मैं तमाम कर देता, आखिरी जुमला सुन लीजिए। एक मर्तबा सारे मदीने वाले जमा हो गए, देखने लगे ये बीबियां किस हालत में आई है। मौला सज्जाद ने कहा रोक दो ना महरमों को। जनाबे ज़ैनब जब बीबियों के पास बैठी ना, तो मौला सज्जाद फरमाते हैं कोई बीबी जब हमारी फुफ्फियों को देखती तो पहचान नहीं सकती, सवाल करती ये बीबी कौन है, ये बीबी कौन है, नहीं पहुंचा सका। एक सवाल करूं, आप अपनी किसी करीबी रिश्तेदार को 1 साल बाद देखें और पहचान न सकें, न जाने क्या बीत गई बीबियों पे, न जाने कितने ताज़ी आने लगे, न जाने कितनी बीबियों ने मसाइब झेले। एक मर्तबा करीबी तरीन आखिरी जुमले, यहां तक के जनाबे ज़ैनब जब घर गई ना, तो एक मर्तबा सहन में बैठी गिरिया कर रही थी, मुसल्ले उठा के सीने से लगाई बैठी थी। हाय ओनो मोहम्मद, मेरा इस घर में दिल नहीं लगता, मैं जीना नहीं चाहती, मुझे कोई इस घर से ले जाए। अभी बैठी थी कि इतने में जनाबे अब्दुल्ला तशरीफ ले आ। जनाबे अब्दुल्ला ने देखा, कहा बीबी कौन है आप, हमारे घर में क्यों आई? मेरी ज़ौदा तशरीफ नहीं रखती, आप तशरीफ ले जाइए। बीबी ने दोनों हाथ सर पे रखे, कहा अब्दुल्ला पहचाना नहीं? अब्दुल्ला मैं ज़ैनब हूं। ना जाने जनाबे अब्दुल्ला ने क्या देखा, जमीन पे गिर गए, फिर उठे, फिर जमीन पे गिर गए। जब तीसरी मर्तबा जमीन से खड़े हुए, जनाबे ज़ैनब ने पूछा अब्दुल्ला क्या बात है, बेटों की शहादत बर्दाश्त नहीं हो रही? क्या ज़ैनब वो दोनों हुसैन पे कुर्बान, मैं होता मैं भी कुर्बान हो जाता। ज़ैनब मुझे इतना बताइए ये कलाइयों पे निशान कैसे हैं? जनाबे ज़ैनब ने रो के फरमाया अब्दुल्ला, कूफे और शाम के बाजार, शराबी का दरबार, अली की बेटियां, हाथों में रस्सियां, बागियों के नारे, सरों में पत्थर। जनाबे अब्दुल्ला ने कहा अली की बेटियों को रस्सियां बंधी। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई 2 दुआ के जुमले। कल 8 रबीउल अव्वल है, आखिरी जुलूस है अय्याम अज़ा का। सब अपनी अपनी हसरतें पूरी करेंगे। आप और हम सिर्फ अज़ादार हैं, इतनी हसरत है। सोचिए उन माओं का जिनके बेटे करबला में, सोचिए उन माओं को कितनी हसरतें होंगी। सोचें जनाबे लैला, जनाबे रबाब, जनाबे ज़ैनब,
कितनी हसरतों के साथ माएँ आई। परवरदिगारा, रोज़ा रसूल पे कितना कोहराम बरपा है। ये आज की रात इमाम ज़माना जन्नतुल बकी में इस्तकबाल कर रहे हों। सब पुरसा देने वहाँ जाएंगे। आए ज़रा हाथों का बुलंद कीजिए। परवरदिगारा, वास्ता बीबियों की असीरी का इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। दुश्मनाने अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगारा, मोमिनीन की हिफाजत फरमा। जो हाथ बुलंद है किसी को रद्द ना फरमा। तमाम मरीजों को शिफाए कामिला अजला इनायत फरमा। कोरोना वायरस का खात्मा फरमा। परवरदिगारा, जो हाथ बुलंद है किसी को रद्द ना फरमा। परवरदिगारा, तुझे वास्ता अपने इज़्ज़त व जलाल का दुनिया से जुल्म का खात्मा फरमा। न जाने कहाँ कहाँ हालात ख़राब हैं तमाम ममालिक के अंदर। परवरदिगारा, सबकी हिफाजत फरमा। हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। मातमे हुसैन।